Okay, question number 1 on your screen. Here it is. Fast and fast with full speed. सेल्फ टाइमर के साथ प्राइवेट चैट में आंसर भेज दीजिए. Quick everyone. जो लोग कर पाए बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाए उससे भी अच्छा. ठीक है, 70 सेकेंड्स. और हमारे let us see guys how to see this question. देखो, अब हमें पूछा क्या है बेटा जी? हमें पूछा गया है लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होगा. ओके हो गया. लास्ट डिजिट क्या होगा? तो लास्ट डिजिट को करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो हमें देखना है कि लास्ट डिजिट को कैसे किया जा सकता है. राइट नाउ अब देखो, आप इसमें कुछ पैटर्न देख रहे हैं. व्हाट कैन यू सी एनी पैटर्न इन दिस? Any number with starting digit 1 will always remain 1, isn't it? With the digit 5 will always remain 5, 6 will always remain 6, and 9 will become 0 will always remain 0. Is it clear? So if we see numbers, so they are going to be all in 10, 1 to 10, 10 to 20. In all of them, these 4 numbers are going to be same. Is it clear to everyone? Yes, no? Okay, so now you see 2 raised to power something which is we call it as 6, right? 3 raised to power something which is 3 raised to power 24. Every number beyond this will be a multiple of 4, isn't it? इसके बाद कोई भी नंबर आएगा 4 का मल्टीपल आएगा. बोलो भाई हाँ या ना. आर यू गेटिंग गाइस? Yes, sir. तो all the numbers will be with power 4. और हमें पता है कि साइक्लिसिटी 4 होती है ना साइक्लिसिटी 4? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 will remain 1, 2 will become 2 raised to power 4 is 1. Yes? 3 will become 1. 3 raised to power 4 is equal to 81. 4 will become 6, right? Yes, no? Yes, sir. 5 will Yes, become 5, 6 will remain 6, 7 will become 7, 1, 8 will become again 6. 8 raised to power, you see 8 raised to power 4, right? 9 will become 1, 0 will become 0. But this will happen in 10 numbers, right? Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But 2 raised to power is 6 here, which is not a multiple of 4. So this will give you what? 2 raised to power 6. What is that? 64. 64. Are you clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Now, except first line, all the other numbers will have same pattern. Is it clear? Yes, sir. Okay. What is the sum? 1, 1, 1, 1. 4, 1, 2, 3, 4. 33. 24 and 5. 33? 33. Yes, sir. 33 into 5. 165? 165. But here you are not getting 6. Here you are getting 4. Subtract 2 from here. Your answer is 163. The last digit is 163. बोलो भाई किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. Anybody having any doubt in this? Now अब ये देखो आप इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस लगाया हमने सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाया. क्या लगाया कि भाई साइक्लिसिटी तो सबको आती है भाई. 4 पे साइक्लिसिटी होता है, एवरीवन नोज इट.
राइट। Yes, sir. थोड़ा सा पेशेंस रखना था बस। और एक कैच था कि 2 की जो फर्स्ट पावर है वो उतना नहीं देगी, बाकी सारे करेंगे। अदरवाइज आंसर आपका 5 या 0 आता। क्यों 5 या 0 आता? क्योंकि हर 10 नंबर्स के बाद सेम चीज आ रही है। आर यू गेटिंग इट? बोलो। अब Yes. इस Yes, sir. अगर मैं 100 फैक्टोरियल तक कर दूंगा तो सेम पैटर्न विल रिपीट 10 टाइम्स, तो लास्ट विल बिकम 8। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं दोबारा दिखाता हूं, ध्यान से देखो। अगर बेटा जी मैं इस चीज को यहां ले जाऊं, इसको अप टू 100 कर दूं, अप टू 100 कर दूं, 100 रेज टू पावर 101 फैक्टोरियल और 99 रेज टू पावर 100 फैक्टोरियल, कुछ भी कर दो क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट 0 है। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल सी, क्या देखेंगे आप कि भाई इसमें सब कुछ, सब पैटर्न 10 बार रिपीट हो रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? So last Yes, digit sir. will be 0, but this will not be the part of pattern. Here it will be 4, actually it comes 6, so the answer comes 8. Did you understand that? Okay, अगर ये यहां से होता, it would have been 11 factorial, 12 factorial, 14 factorial, right? So that this is beyond 4 raised to power, beyond multiple of 4, means all the powers are multiple of 4. So if it is ending on 40, it will end on 0. If it is ending on 50, it will end on 5. Right? Because 33 is the sum of 10 numbers. 33 is the sum of No. Okay. Let me give you one more question on this. 63 raised to power 25 into 25 raised to power 63. ठीक है? Find the last 3 digits. Last 3 digits. 3 digits. Your time starts now. Chirag Goenka, time starts now. Last 3 digits, quickly. Fast and fast, beta ji. Shall we discuss this? Yes, sir. So, Yes, sir. तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था 63 रेज टू पावर 25 25 रेज टू पावर 63. अब ये क्वेश्चन जब आया, कैट का ये एक्चुअल क्वेश्चन है बेटा जी ये, तो तब तक दुनिया जहान में कहीं भी 3 डिजिट निकालने का फॉर्मूला नहीं था। आप लोगों में से बहुत लोगों ने तैयारी किया होगा, यहाँ वहां आपको सिखाया नहीं गया होगा 3 डिजिट का। वो चाइनीज वाइनीज थ्योरम लगाते हैं, राइट? उधर में भी बंदा फंस जाता है। अब एक कहानी समझो कि यार ये 63 ही क्यों दिया है, why 63 and why 25? It should give you some indication, because 63 is near to which number? पता है बेटा लास्ट डिजिट किससे बनता है? कभी भी डिजिट बनता है किससे बनता है? माई नंबर सिस्टम लेक्चर नंबर 1, पहला ही लेक्चर नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने बताया है टाइप ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जब भी डिजिटल सिस्टम की बात आएगी, किसकी बात आएगी? 2 and 5 की। 5. ठीक है, क्योंकि 2 5 का बिल्कुल ही मिरर इमेज भी होता है, वाटर इमेज भी होता है।
और 2 और 5 ही एक ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 10 बनता है। Getting? So Yes, sir. for our digital system, for our new system, we need to have this thing 5, but this is not 2. We can make it 2. We can make it 2 raised to power, or we can write 64 raised to minus 1 raised to power 25 into 25 raised to power 63. Can we write this, guys? Yes, sir. Yes, sir. Now if you expand this, अगर आप इसको खोलेंगे, आप देखेंगे 25 की पावर कैसे चलती है भाई। 25, 625, 15625, yes, no? Yes, Yes, sir. sir. तो 25 की पावर कुछ भी कर दो, पीछे 625 ही आता है। 625. Right? We are only concerned with 3 digits. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, if we will open this, the last term will be minus 1. Second last term will be 64. And before that, the term will be 64 raised to power 2. Are you getting? Yes, sir. Binomial expansion? Yes, sir. नंबर एक्सपेंड करते हैं। अलजेब्रा की क्लास में मैंने बताया था कि ये कैसे चलता है, एक्सपेंशन कैसे चलता है, a प्लस बी रेज टू पावर n कैसे लिखा जाएगा। ठीक हो गया? तो अगर हम इसको खोलेंगे, 625 मल्टीप्लाइड बाय एनी ऑफ द नंबर्स बियॉन्ड दिस इज गोइंग टू गिव यू एनफ जीरोस। Yes, no, because this is 2 raised to power Yes, sir. 6. So there will be 6 zeros minus 625, which is going to give me 375. आया भाई समझ में सबको? Sir. Yes, sir. Yes, no, very good, very good. सर लास्ट वाला पॉइंट जरा रिपीट करें। बेटा ये सब नंबर जितने भी इसके इधर नंबर आएंगे, they all will have 64 in them. When you multiply it by 625, you will get so many zeros. And as we are interested in only 3 digits, so minus 625 will become 375. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay. पिछले साल का एग्जाम का क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। नहीं सर, पिछले साल के एग्जाम का क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी अभी करवाया है कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर है ये। 2 raised to power 4, 3 raised to power 4, 4 raised to power 4 plus 130 raised to power 4. Last digit. You should answer it in 30 seconds. 30 seconds में आंसर आना चाहिए आपका। थर्टी सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी, फास्ट एंड फास्ट। दस डिजिट्स का सम कितना आएगा? 33, और 33. 13 टाइम्स करना है तो 9 आ गया आंसर। गॉट इट गाइस? तो डरना नहीं है आपको कि भाई क्वेश्चन तोड़ू लोग ठीक ही करेंगे, वो गलत भी कर जाते हैं कई बार। ओके हो गया? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं अभी। लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ध्यान से करना। 100 रेज टू पावर 1 1 1 1 1, 5 हैं, 5 इक्के हैं, और 5 इक्कों की पावर Sir, it's 100 or 1000. 1000। यार जो लिखा है वो बोलने में कई बार गड़बड़ हो जाती है। डिवाइडेड बाय 11, व्हाट विल बी रिमाइंडर? फटाफट, फास्ट एंड फास्ट। What will be remainder when divided by 11? टाइमिंग साथ में लिखना है आपने आंसर देते हुए। दिस इज 4th क्वेश्चन गाइस। देखो ना यार, इस क्वेश्चन को 80% लोगों ने गलत किया है। 80% हैव डन इट रॉन्ग। तो मेरे को गंदे क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का।
ठीक है, देखो 1000 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं -1 बचता है, बोलो भाई हाँ। Yes, sir. -1 की पावर जो भी है ऑड है, क्या है, ऑड है, तो -1 ही आ जाएगा। Yes, sir. यहां से 2 इक्का 2 इक्का 1 इक्का बच गया, ठीक हो गया। Yes, sir. तो इसकी पावर इवन है, तो ये तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता जब 1 है। -1 + 1 0. आंसर। आप समझ रहे हो ये क्वेश्चन क्यों, आप क्यों फंसे इस चक्कर में, क्योंकि मैंने इस चक्कर में दिखाया आपको। Yes, sir. आप बेसिक चीज भूल गए, बेसिक जो है एकदम सिंपल है भाई, a + b⁴n डिवाइडेड बाय a विल गिव यू b⁴n, ठीक है। नंबर सिस्टम क्लास नंबर 2 कर लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कैसे रिमाइंडर को करते हैं, ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस है। क्लियर हो गया। यस चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, फटाफट करना भैया। 376 raised to power 2547 divided by 100, tell me the remainder। एक मिनट, 2 रह गया सॉरी, 25472, टेल मी द रिमाइंडर। फटाफट आंसर भेजो भाई। चलो बताता हूं कैसे करना है ये क्वेश्चन। करो सभी लोग आंसर करो, जिनको नहीं आंसर देना वो XX टाइप किया करो, राइट। चलिए बेटा जी, ये दिखने में रिमाइंडर क्वेश्चन है पर ये रिमाइंडर का क्वेश्चन नहीं है, ये बेटा जी लास्ट डिजिट का क्वेश्चन है। समझ आ गया। 76 की पावर कुछ भी कर दो 76 ही रहता है। Yes, sir. ये 4 नंबर लिखवाए थे मैंने आपको, 76 25 5 01 01 00. 00। इनकी पावर कितनी भी कर दो ये 2 डिजिट सेम रहते हैं। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या बताया था, 24 74 75 Sir, 74 नहीं था, sir. 49 51 99, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, 75 चेक करना पड़ेगा, 74 चेक करना पड़ेगा, बट ये तो पक्का 01 नहीं बेटा, 01 नहीं, 1 2 3 4 5। ये 5 नंबर कैसा बिहेव करते हैं, अगर पावर इनकी ऑड होगी, क्या होगी, तो ये यही रहेंगे। बोलो। Yes, sir. अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं बेटा जी, क्या देता हूं, 497949 रेज टू पावर 3781 डिवाइड बाय 100, फाइंड द रिमाइंडर, तो आंसर आ जाएगा 49। ठीक है। अब अगर मैं 82 कर दूं यहां पे, क्या आ गया, इवन 01। नंबर, तो बेटा जी 24 का बन जाता है, 76 75 का बन जाता है 25, 49 का 01, इसका भी 01, इसका भी 01। आर यू गेटिंग। यस सर। ये हमने क्या किया, हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो किया। चलो आगे कराता हूं, आगे क्वेश्चन, चलो आगे। यस सर। ओके ओके, ये क्लियर कर देता हूं मैं सारा। लिखो क्वेश्चन 4, अरे ये क्या हो गया, 47x 342y, this number is divisible by 22, find the possible values of this number। ये नंबर m है, इसकी डिविजिबल बाय 22 है, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं सो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 22, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। अब YouTube में क्या होता था ना, सबको सबका आंसर दिख जाता था, तो कई लोग मेरे जैसे भाई गरीब लोग क्या करते थे कि आंसर देने के चक्कर में जो पहले जिस बंदे ने आंसर दे दिया उठा के वही चेप के आंसर डाल देते थे। अब प्राइवेटली दे रहे हैं तो सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं और काफी लोग गलत दे रहे हैं।
देखिए बेटा जी, ये 22 से है, सो y शुड बी इवन, Even. y शुड बी Even. अच्छा। अब हमारा ऑल्टरनेट डिजिट का क्या हो गया? So 8 plus xy. 8 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 12. 12. 12. तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 4. 4, और Minus 8. और कि अब हमें किस में से क्या माइनस करना होता है? 15. का जो डिफरेंस है दैट शुड बी डिविजिबल बाय आइदर 0, शुड बी डिविजिबल बाय 11. सो 8 प्लस x प्लस वाई माइनस 12 शुड बी डिविजिबल बाय 11 is equal to 11. इट शुड बी 11. 11 और 0 और 22. ठीक हो गया? इट कैन बी माइनस 11 ऑल्सो. नाउ दिस कैन नॉट बी, सी यहां से लेना होता है ना हमें, इधर से दिस माइनस दिस. सो अगर हम इसको 4 लेते हैं तो ये 12 के इक्वल आ जाता है. बट अगर हम इसको 15 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 15. तो ये 23 बन जाएगा. Yes, sir. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. x प्लस वाई की एक वैल्यू नहीं आएंगी, दो वैल्यू आएंगी. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. जब 4 आ गया तो y कैन बी 0, y कैन बी 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. सो y कैन बी 8, y कैन बी 6, इट कैन बी 9, इट कैन बी 7. 1 2 3 4 5 आंसर आ गया इसका. 99% लोग इसका आंसर पता है क्या देते हैं? और वो क्या है? गलत जवाब. ये क्या है भाई? गलत जवाब. चले भाई आगे, बोलो बच्चा लोग. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. 7 raised to power 777 divide by 28, give me remainder. फट. अभी तक एक ही बंदे का आंसर सही आया है मेरे पास, दो का आ गया. एक तो ये ना फॉर्मेट और लिटिल फॉर्मेट थ्योरम ने लोगों को पागल कर रखा है. नहीं भी जरूरत होती फिर भी लगा देते हैं. सर 7 का स्क्वायर किया तो वो 49 आया, -7 रिमाइंडर था. तो -7 की पावर सर हमने इवन हमने ऑड से इवन बनाया उसको, तो 4 का मल्टीपल आई. तो 4 का मल्टीपल 0 1 आता है, और एक 7 की पावर और बची थी, तो उससे 7 आया रिमाइंडर. अच्छा चलो. और अनिंदम? मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक 7 माइनस कम कर लिया था, लास्ट में उसको मतलब वो कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उससे. हाँ. वेरी गुड. देखो भाई, आपने अगर 7 इधर से कॉमन ले लिया, इधर से 7 कॉमन ले लिया, यहां पे 4 आ गया, और यहां पे 7 रेज टू पावर 776 आ गया. यस. सो 7 रेज टू पावर 4 का मल्टीपल, 7 रेज टू पावर 4 का मल्टीपल इज इक्वल टू 2401. ठीक है? या ये भी नहीं करना तो ये कर लो, ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर आ जाएगा, नहीं -1 रेज टू पावर और आ गया, सिंपल. ठीक है? -1 आ गया. अरे 7 रेज टू पावर ये है ना, तो -1 की पावर ये आ गया. बट ये 7 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता होता है. जब भी रिमाइंडर कॉमन लेते हैं तो उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं. ठीक है? अगर कुछ नहीं चले तो साइक्लिसिटी बेटा जी काम करती है. साइक्लिसिटी कैसे काम करती है? 7 की पावर 1 रिमाइंडर 7, 7 की पावर 2 रिमाइंडर 21, 7 की पावर 3 रिमाइंडर 7, 7 की पावर 4 रिमाइंडर 21, 7 की पावर 5 रिमाइंडर 7. क्या कुछ कहना है मेरे को इसके बाद? Shall I say something beyond this?
No, sir. No, sir. No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आगे आपका 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 raised to power 7. टेल मी द रिमाइंडर। ध्यान देना नीचे 10 raised to power 7 है, ऐसे मत समझ लेना। ला 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 ला। इसमें पता चलेगा किसमें कितना है दम। देखे जरा, ध्यान से सोचो क्वेश्चन को, फिर करो, सीधा आंसर मत टाप दो। पता नहीं ये विवेक शर्मा, मुकुल शुंगला जो आंसर दे रहे हैं क्या सोच के आंसर दे रहे हैं। हिमांशु गर्ग थोड़ा आसपास में लग रहे हैं पर गलत है हिमांशु आपका आंसर। चलो मैं हिंट देता हूं सबको। आपको पता है कि 10 raised to power 7 है, तो अगर हम लास्ट 6 डिजिट्स पता कर लेंगे या 7 डिजिट पता कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। सर लास्ट 6 सर लास्ट 6 7 तो नहीं आ 0 रहा। है। हाँ लास्ट 6 वो तो 7वां डिजिट पता कर लो वो आंसर है। हाँ सर। अभी अभी एक फंडा लगाया था ना हमने, क्या लगाया था कि जो कॉमन लेते हैं वो मल्टीप्लाई होता है बाद में। देखो तो 4 आ जाएगा। हाँ 4 कैसे आया बेटा? तो निकालना पड़ेगा कॉमन, वही जो आपने बताया। वो कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद मतलब बचे हुए जो डिजिट्स थे उनका मल्टीप्लिकेशन का यूनिट, मतलब उनका यूनिट डिजिट देखेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे 4 आता है। देखो पहले ये 25 फैक्टोरियल के लास्ट डिजिट निकालेंगे, लास्ट 6 डिजिट मेरे 0 आएंगे इसमें, ठीक है। अब लास्ट नॉन जीरो डिजिट निकालना हो, क्या निकालना हो मेरे को बोलो? नॉन जीरो डिजिट निकालना है। 2 3 4 5 6। अब ये वाला जो डिजिट आएगा दैट विल बी माय आंसर, ठीक है। और मींस लेट अस से दिस इज x, सो x into 10 raised to power 6 should be my answer. Are you getting? बोलो भाई हाँ या ना? यस सर। लास्ट नॉन जीरो डिजिट कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। 25 फैक्टोरियल के हमें बनाने हैं फैक्टर्स। तो 25 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आता है बताइए? 12 6 3 1 22 टाइम्स। बोलो। यस सर। यस सर। 3 कितने बार आता है? 10 times। 3 8 2 5 कितने टाइम्स आता है? 6 times। 7 कितने टाइम्स आता है? 3 7 3 टाइम। 3 times। 11 कितने टाइम्स आता है? 2 बारी। 13 17 बस 23। ये सारे एक ही बार आएंगे। Got it? Yes। Now 5 raised to power 6 will eat up 2 raised to power 6, so we will be left with 2 raised to power 16, which will give me last digit as 6, right? 3 raised to power 10 will give me last digit as 9 7 raised to power 3 will give me last digit as 3 this will give me 1, this will give me 3 7 9 3. So 27. So here we can say 7 into 7 9 into 6 7 into 3 1 6 into 9 4. So last digit is 4. So here it is 4. Answer is 4 10 raised to power 6. बेटा ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट निकालना आ गया आपको? यस सर। यस। ये मैं आपको क्या कर करके दे रहा हूं, समझो, भावनाओं को समझो। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में बना के दे रहा हूं।
समझ आ रहा है आपको? Yes, क्वेश्चन sir. के लास्ट नॉन जीरो डिजिट का था, मैंने आपको रिमाइंडर में बना के दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि जो लोग रट्टा मार के काम करते हैं या एनफ प्रैक्टिस नहीं करते हैं या सुपरफिशियल तैयारी करते हैं, वो यही दिमाग लगाता रहेगा कि रिमाइंडर थ्योरम का कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊं इस पे। पिछले क्वेश्चन में जो लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट था, हमने उसको रिमाइंडर का बना दिया। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो लास्ट डिजिट का था, हमने उसको दिखा दिया कि ये पावर वाला क्वेश्चन है। Yes, sir. ये क्या होता है, ऐसा करने से जो रट्टा मारू लोग होते हैं वो भटक जाते हैं। और उसमें जो एक तो वो है जो गरीब इंसान है, वो तो पहले ही हाथ छोड़ देता है, वो तो देख के छोड़ देता है, अपने बस की बात नहीं है, तुक्का लगाओ आगे चलो, ठीक है। उसका वैसे भी कुछ नहीं होना है, वैसे भी कुछ नहीं होना है। एक दूसरे वाला है जो कहता है कि नहीं, मैंने क्वांट किया हुआ है, ऐसे कैसे नहीं हो रहा। अब या तो वो गलत करके आता है या वो फिर टाइम खराब करता है। आर यू गेटिंग इट? अगर आपको उसका पकड़ में नहीं आ रहा तो उसको नहीं करना बेहतर है, राइट? और सोचो कि इसको पूछा क्या गया है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। वो दिख क्या रहा है वो नहीं, पूछा क्या गया है और वो कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। दया कुछ तो है दया, वो वाला हिसाब किताब लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। तो ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे पक्के से हो गए, लास्ट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट करा दिया मैंने, रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट करा दिया, इसमें फैक्टोरियल वाला भी कॉन्सेप्ट बीच में आ गया, नंबर ऑफ जीरोस वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, नंबर ऑफ जीरोस वाला। 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरो। छोटा सा क्वेश्चन है, चलो भाई। यश बंसल, तुमने ये पहले किया हुआ है हमसे। ऐसे किया था मतलब? नहीं, ऐसा किया था, ये नहीं किया था। नो सर, नेवर। ऐसा नहीं किया था सर नहीं, आपने ऐसा एक कैट शो में कराया था। कैट शो में डिट्टो? नहीं मतलब सिमिलर कंसेप्ट पे कि सेम कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था? 125 को कॉमन लेके उसके बाद जो बचेगा उसमें से भी जीरो निकलेगा। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बेटा, 125 कॉमन ले लिया, 125 फैक्टोरियल, क्या बच गया? 126 माइनस 1, बोलो। यस Yes, sir. 125 में आती है 25 प्लस 5 प्लस 1, 31 जीरोस। Yes, sir. ये वाला जो है ना, ये भी तो 3 जीरोस दे देगा मेरे को, ठीक है। तो 31 प्लस 3 आएगा। कुछ लोगों ने 93 लिखा है, कॉन्सेप्ट तो सही पकड़ा बट मल्टीप्लाई कर गए। 32। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन समझ आया भाई, 34 कैसे आएगा, बोलो। ये सो 125 में 3 5s होंगे तो वो 3 zeros दे देगा। हाँ ठीक है, क्योंकि टूज तो ऑलरेडी हमारे पास प्लेंटी में है। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, 125 फैक्टोरियल इंटू 120 नहीं सॉरी 25 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोस। यहां से 6 जीरोस आएंगी और यहां से 4 आएंगी। 6 गुना 4 24 जीरो, सबसे ज्यादा गलत दिया जाने वाला आंसर। नंबर ऑफ जीरोस हमेशा ऐड हो जाएंगी बेटा, ठीक है ना। मतलब अगर आप ये करोगे, ठीक है, ये कितने आएंगे? 10 raised to power 10. Did you understand that? गलती पकड़ में आई? Yes, sir. तो 10 raised to power नहीं 1000 raised to power 8 minus 18
जो ये नंबर आएगा उसके डिजिट्स का सम बता दो फटाफट। फास्ट। देखो भाई आंसर आएगा 9 इंटू 22 प्लस 10, क्योंकि लास्ट डिजिट बनेगा 82। ठीक हो गया, बाकी सारी 9। ठीक हो गया, कितने आएंगे? 22 9 आएंगे। 9 इंटू 22 प्लस दिस, तो 208 इज द 208 आएगा सर। 208 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? यस जी सर। ठीक है, यस चलो ओके हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, अलग अलग तरह के मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, पकड़ते जाइएगा क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है। उसने क्या लिखा कि नंबर लिखे सारे, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखता गया भाई। हाँ, उसका बहुत अच्छा बच्चा था, मन का सच्चा था, और नंबर लिखता गया। कहाँ तक लिखे उसने? उसने लिखे भैया 126 तक। ठीक हो गया, बिना रोके। ठीक हो गया भाई? यस। यस अब सर इस Yes, sir. नंबर को हमने डिवाइड करना है 5 6 2 5 पे। बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? व्हाट विल बी रिमाइंडर? फटाफट। व्हाट विल बी रिमाइंडर? नंबर सिस्टम की पहली क्लास लगाई होगी तो आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, डिविजिबिलिटी रूल वाली। किसी का भी आंसर नहीं आया? आगे आगे कुछ लोग नहीं। रेवती बच्चा क्या कर रहा है यार, सारा मूड खराब कर देते हो तुम आंसर लिख के। मेरे को ये बताओ तुम्हारा आंसर आया कैसे? आओ रेवती। सर ये 5625 जो है ये 5 पावर 4 इंटू 9 आता है। 5 रेज टू पावर 5625 क्या आता है? 5 पावर 4 हाँ, इंटू 3 स्क्वायर। इंटू 3 स्क्वायर। चलो अच्छा, फिर? सर और ये जो पूरा जो डिजिट का नंबर है मतलब इतना बड़ा, वो दैट इज डिविजिबल बाय 3। नॉट बाय 9। नहीं इट सॉरी बाय 9 बाय 9 बाय 9। हाँ हाँ। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि 5 से क्या रिमाइंडर आता है। अबे घोंचू प्रसाद, 5 क्या क्या करना है यहाँ पे?
5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट डिजिट 5 की पावर 2 का सर लास्ट 2 डिजिट 5 की पावर 3 का लास्ट 3 5 की पावर 4 का लास्ट 4 समझ आया आप कुछ? हाँ सर ये 5 आ जाएगा ना, क्योंकि पीछे 125 होगा। यस नो? हाँ सर तो ये वाला तो सब डिविजिबल हो जाएगा किससे? 5⁴ से। 4 से 5 1 2 5 को 2 6 को 625 से डिवाइड कीजिए, ठीक है? 126 बच जाएगा। नहीं, कितना बचेगा? डिवाइड करो, आई थिंक पूरा पूरा डिवाइड ही हो जाएगा। 126 बच जाएगा। यस सर 126 126। और जो 9 हमने कॉमन लिया था, क्या कहते हैं, कट किया था क्या कहते हैं अपना, सब हमने कट किया था वो। नहीं 126 ही आएगा। इससे 126 आ रहा है, इससे 126 आ रहा है, इससे डिवाइड करने से, ठीक है? अब 9 से 9 हमने डिवाइड थोड़ी किया है, या 126 आ रहा है। अब 9 का पंगा रह गया। अब चाइनीज थ्योरम थोड़ी यार, चाइनीज थ्योरम लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं 5 6 को 5 से डिवाइड करेंगे। यस, ये 9 से डिविजिबल है ना खुद ये नंबर? यस ये 9 से डिविजिबल है। सो दिस माइनस 126 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ओके, इसमें से 126 माइनस कर दो। कर दिया? कर दिया? यस सर सो व्हाट इज द नंबर? 125 जो भी है 125,000। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 625 यस सर as well as by 9. बोलो। Yes, sir. So this number is बोलो भाई, हाँ या ना? हाँ सर हाँ sir. यस सर वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Sir, how is it divisible by 9? 1 plus 1 to 6 बेटा हमने छोड़ दिया ना, 1 to 6। यस सर जो आपने ये 9 से डिवाइड किया, लेकिन 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो सम ऑफ द डिजिट्स है which is divisible by 9. एक से लेके ये सारा डिजिट को सम करेंगे, सो Yes, sir. क्या आ जाएगा? दिस विल बी डिविजिबल बाय 9। तो 1 to 6 को छोड़ देंगे। सर लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये सब का सम 9 से डिविजिबल है? जोड़ तो कर नेचुरल नंबर है भाई, 126 into 127। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हर 9 नंबर जो बेटा जी होते हैं वो 9 से डिविजिबल होते हैं, उनका सम पता है आपको ये? सर नहीं पता था। हाँ, पहले 9 नंबरों का जो सम होता है वो 9 से डिविजिबल होता है, ऐसे ऐसे। और ये जो 126 है ये 14 गुना 9 है, ठीक है? 14 टाइम्स आ गया, तो दे विल ऑल बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है? ओके सर। चलो पूछ लिया करो, कुछ डाउट है ना तो यू कैन ऑलवेज आस्क। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं अभी। एक और बच्चा है छोटा, हाँ ठीक है। वो बच्चा क्या है, उसको काम दिया गया कि भाई ऐसा करो, बोर्ड पे नंबर लिखो। तो उसने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 ऐसा नंबर लिखता गया वो एंड तक, ठीक है? तो उसने कुछ नंबर लिखे, हमें पता नहीं कितने नंबर लिखे, और उससे पूछा गया भी चलो आप ऐसा करो, इन सभी नंबरों का जोड़ करके बताओ। तो भैया अच्छा बच्चा था, तो उस भाई ने शराफत से उसका टोटल भी कर दिया, ठीक हो गया? तो उससे पूछा गया भाई टोटल कितना है, उसने बोला कि टोटल है 1200। कितना है? 1200 है। तो उसके टीचर ने बोला भैया देखो बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, 1200 टोटल नहीं हो सकता है। बोला नहीं टीचर 1200 ही है। फिर
क्या किया, क्योंकि टीचर का काम क्या होता है कि बच्चे की गलती को माफ कर देना और उसको सुधारने का मौका देना उसकी गलती को। तो उसने बोला कि अच्छा दोबारा बताओ, बोले नहीं मेरा 1200 ही आ रहा है। तो टीचर ने कहा बेटा ऐसा है, उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, बताया कि हमें लगता है कि तुम कोई नंबर क्या कर गए हो, मिस कर गए। तो एक नंबर तुम्हारा मिस हो रहा है। कहता है एग्जैक्टली मिस, आई मिस्ड वन नंबर। तो आपको दो बताना है, एक तो ये टोटल नंबर कितने थे n, और ये जो नंबर मिस किया वो m क्या था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को लपेटा लपेटी करनी है। मैं आपसे पूछ लेता हूं n-1 क्या होता है। ठीक हो गया? यस। हाँ बताओ, दोनों चीज बताओ, n क्या होगा और ये जो मिस किया वो क्या होगा, और इनका डिफरेंस वो तो बता ही दोगे आप। बोलो जी, आपके पास है, टाइम है, करो फटाफट। फटाफट फटाफट। आंसर भेजो भाई। मिस किया उन्होंने 26 नंबर और नंबर्स आर 49। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला लगा बेटा इसमें, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 1200। n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 2400। ठीक है, क्योंकि 1200 प्लस समथिंग होगा तो 2400 प्लस होगा। तो किस नंबर को किससे गुना करें? अगर 50 को 51 से गुना करते हैं तो 2550 आ जाता है। अगर 49 को 50 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, बताओ? 2450। 2450 आ जाता है। ठीक हो गया भाई? यस सर। ठीक है, तो उसका जो नंबर है वो 49 है। कितने नंबर है? 49। और 49 का सम कितना बनता है भाई? 1225, 1225 सम बनता है। समझ आया भाई? यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर 49 नंबर होते तो ये सम बनता, अगर 48 होते तो क्या बनता? 48 इंटू 49 डिवाइड बाई 2, तो 1176 बनता तो टोटल। 76। बोलो समझ आया? यस सर। यस सर। लिखा 1200 तो उसने मतलब 25 मिस किया। विच नंबर ही मिस्ड? 25। अगर उसका ऐसा होता कि टीचर बोलती कि भाई तुमने कोई नंबर डबल काउंट किया है, क्या किया है? डबल काउंट किया है, सो देन दैट नंबर वुड हैव बीन 26, नहीं 24 सॉरी, फिर वो नंबर 24 होता और 48 नंबर होते, तो मतलब उसके नीचे वाला लेते। ठीक हो गया भाई? यस सर। ऊपर वाला नंबर लिया। ठीक है, चलो ठीक हो। चलो क्या क्वेश्चन क्या था? फाइंड द number of numbers, find the number of numbers, number of 3-digit numbers, ठीक है, which are multiple of, ठीक है, 2, 3 और 5 but not all। क्लियर हुआ क्वेश्चन? Find the number of 3-digit numbers which are multiple of 2, 3, 5, not of all। तीनों का नहीं है, इंडिविजुअली उनका मल्टीपल हो सकते हैं। सर वो 2 और 3 या फिर 3 और 5 का हो सकता है ऐसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल का मतलब सबका नहीं है, इंडिविजुअली 2 का हो सकता है। ठीक है सर।
Fast and fast, give me answers. चलो जी, तो टोटल कितने नंबर हैं जो 100 to 999 आते हैं? 900 नंबर है। यस सर। 2 से डिवाइड होने वाले 1/2, ठीक है। 2 से ना डिवाइड होने वाले 1/2, 3 से ना डिवाइड होने वाले 2/3, 5 से ना डिवाइड होने वाले 4/5। कट कर दिया। 4/50 नंबर जो हैं, ठीक है, मतलब 8/30 नंबर। 30 में से 8 नंबर ऐसे हैं जो क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब 22 नंबर ऐसे हैं 30 में से जो 2, 3 और 5 से डिवाइड होते हैं। बट एक ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड होता है, उसको माइनस कर दो। तो 21/30 ऑफ 900, द आंसर इज गोइंग टू बी 630। ये वेन डायग्राम से भी हो जाएगा सर? अरे लास्ट वाला स्टेप रिपीट तो करना लंबा काहे को करना है? 22 के बाद 21 वाला स्टेप रिपीट कर दो ना। बेटा जी 22 नंबर हो गए जो डिवाइड हो जाते हैं। हाँ जी सर, फिर एक कैसे लेस किया? 30 नहीं लेना ना, बट नॉट ऑल है, सबसे डिवाइड होने वाला एक नंबर। तो सर उसमें से 30 माइनस नहीं होगा? कौन से में से सर जो मतलब 2, 3, 5 मतलब तीनों में से तीनों की बात है। 660 में से 30 माइनस कर लो। ओके सर। आंसर तो वही आएगा ना बेटा। यस सर। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर which are factors of how many, चल थोड़ा मुश्किल बना देता हूं, थोड़ा सा मजेदार लगा। हाउ मेनी, लास्ट है ना, थोड़ा मसाला ज्यादा लगा देते हैं। जैसे हम कभी गोलगप्पे खाते हैं तो लास्ट वाला गोलगप्पा होता है ना, उसमें वो बोलते हैं कि भैया इसमें आलू भी डाल दो, इसमें चटनी भी डाल दो, सॉस भी डाल दो, है ना। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, हमारा भी तो काम वही है ना। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर which are factors of 360 or 900 but not both। चलो बहुत, इससे ज्यादा डालेंगे तो फिर मिर्ची लगेगी, खाएंगे नहीं आप। ख्याल रखना पड़ता है ना टेस्ट का। चलो कराते हैं। पहले क्या लिखा भाई, क्या लिखा पहले सबसे? इवन नंबर। क्या लिखा? इवन नंबर्स। इवन नंबर। तो क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो, बाहर निकाल लो, ठीक हो गया। क्या क्वेश्चन बन गया? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर factors of 180 and 450 but not 450 both। अब कर सकते हो क्वेश्चन? both। अब तो कर सकते हो ना? Yes। करो। चलो फैक्टर्स ऑफ 180, फैक्टर्स ऑफ 180
बोलो फैक्टर्स ऑफ 180। 2 into 3 square into 5. अरे नहीं फैक्टर्स बेटा, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन बता दिया आपने। 2 into 3 into 18. 2 की पावर 18. 2 की पावर 12 आएगा 12 12 आएगा सर, पर 1 सर 12 आ गए नहीं 18 आएंगे। 18 सर। 18 फैक्टर्स आ गए। 450 के क्या आ गए? सॉरी 2 into 3 into 5 2 raised to power 1 2 2 आएगा 18. Yes, sir. 18 इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है दोनों का? 180 और इसका 90। Yes, sir. 90 के फैक्टर्स 2 into 3 into 5 2 into 3 into 5. Yes. तो 12। Yes, sir. 12. यस सर। तो इसके अकेले फैक्टर 6. इसके अकेले फैक्टर 6 6। plus 6. समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. क्योंकि हमने इवन पूछे है ना बेटा, ठीक है? या इसको सर ये ऐसे 6 सर ये 6 plus 6 वाला एक बार समझा दोगे? बेटा ये 12 18 फैक्टर्स आ गए इसके। जोशी अपना ऑडियो बंद करो बेटा। हाँ इसके 18 फैक्टर आ गए, इसके भी 18 फैक्टर आ गए। अब जो 90 इनका कॉमन फैक्टर है तो 19 के 12 फैक्टर्स आ गए। तो इसके अलोन 6 आ गए, अलोन इसके 6 आ गए। ठीक है, और क्योंकि मैंने 2 बाहर निकाला हुआ है तो सारे इवन ही आए हैं। या आप ऐसे कर सकते थे 360 के इवन फैक्टर्स निकाल लो। बोलो Yes, sir. 900 के इवन फैक्टर्स निकाल लो। इनका कॉमन फैक्टर 180 बनता है, उसके इवन फैक्टर निकाल लो। फिर वही बात वही थी, पर मैंने पहले ही बाहर कर लिया। ठीक है, यस सर। चलो जी, ठीक है।